we welcome all those who are watching online, and we believe that today God is going to do great things. There are going to be great breakthroughs, and we're going to see the hand of God in each and every family, upon each and every person. Let us look to God in prayer. Father, Lord God, this morning we come before your throne of grace, Lord God, and we want to thank you that you've given us another new day so that we can worship you, Lord God. We can exalt your name despite the tribulations, despite the suffering that is around. Father, you are sitting on the throne and you are in control. And this morning, Father, we pray that the blood of Jesus covers every family, every person that is watching. And Lord, let the blood of Jesus sweep across the land here, upon every state, upon every village, upon every city, and upon every family and home, Father God. This morning we pray as we go into worship, Father God. Father, let the heaven be opened, and Father, you be enthroned in our worship, Father God. When your word is preached, Father, this morning we pray that there's going to be breakthroughs, Father, Lord God. Oh, Father, we pray that your word is going to remove the spirit of fear that is grasping people's life, Father, Lord God. And we pray that this morning something new कुछ नया होने वाले प्रभु परमेश्वर आपकी अभिषेक को हम खोलते प्रभु और विश्वास करते प्रभु कि आज की इस सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु हर एक जन प्रभु जो परमेश्वर ये ऑनलाइन सर्विस में प्रभु जुड़े प्रभु उन सबको बहुतायत आशीष से भरते हैं धन्यवाद के साथ इस थोड़ी सी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं आमीन 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 हालेलुया एसओपी सबकॉन्शियस फैमिली परमेश्वर आप सबको स्वागत है परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है आज हम ऑनलाइन कर रहे हैं लेकिन गॉड हर वक्त हमारे संग संग है आइए हम परमेश्वर की इबादत करेंगे नाचते हुए गाते हुए झूमते हुए खुशियां मनाएंगे क्योंकि परमेश्वर के पास का आनंद ही आनंद है थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस The Spirit of the Lord is within my heart. I will sing as David sang. The Spirit of the Lord is within my heart. I will sing as David sang. Oh, I will sing, I will sing, I will sing as David sang. I will sing, I will sing, I will sing as David sang. Within my heart, I will sing as David sang. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will sing as David sang. Oh, I will sing, I will sing, I will sing as David sang. I will sing, I will sing, I will sing as David sang. Within my heart, I will clap as David clapped. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will clap as David clapped. Oh, I will clap, I will clap, I will clap as David clapped. I will clap, I will clap, I will clap as David clapped. Let us move along. When the Spirit of the Lord within my heart, I will dance as David danced. Come on! And the Spirit of the Lord is within my heart, I will dance as David danced. Dance it! I will dance, I will dance, I will dance as David danced. I will dance, I will dance, I will dance as David danced. Oh, I will dance.
मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया। कोरोना से गिर तक तू वहां पर है। हालेलुया। कोविड में चलू तक वहां पर है। हालेलुया। कोरोना से गिरूं तो तू वहां है, कोविड में जाऊं तो तू वहां है। कोरोना से गिरूं तो तू वहां है, कोविड में जाऊं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। जो सितारे बोले ऊपर में धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। उसकी आत्मा कभी भी ऐसा लगता है कि दाऊद कहता है कि मैं नरक में जाके बैठनी बनाऊं तो तू वहां पर आएगा। हालेलुया। तू मुझे बहुत प्यार करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। तेरा प्यार है अपार, करूं कैसे बयां, तन्हाई में मेरे सदा तू मेरे साथ। ओह ब्यूटीफुल होली स्पिरिट, तू मेरे साथ। तेरा प्यार है अपार यीशु। तेरा प्यार है अपार, करूं कैसे बयां, तेरा प्यार है अपार, करूं कैसे बयां, तन्हाई में मेरे सदा तू मेरे साथ। तेरा प्यार है अपार, करूं कैसे बयां, तन्हाई में मेरे सदा तू मेरे साथ। तेरे अश्क भी करती स्तुति, रूह मेरी पाती सुकून। तेरे अश्क भी करती स्तुति, मेरे रूह पाती सुकून। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सबसे हसीन है तू हमदम मेरा प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सबसे हसीन है तू हमदम मेरा प्रभु। Thank you Lord, thank you Jesus Lord। हाथों को उठाकर परमेश्वर की इबादत करें, आराधना करें, सदा करें।
ख्यालों में मेरे तू है हर लम्हा, दिल के हर कोने में यीशु तू है बसा। ख्यालों में मेरे तू है हर लम्हा, दिल के हर कोने में यीशु तू है बसा। है इश्क तू हमदम भी तू, तेरे दिल का राजा भी तू। है इश्क तू, यस हमदम भी तू, तेरे दिल का राजा भी तू। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सबसे हसीन है तू हमदम मेरा प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सबसे हसीन है तू हमदम मेरा प्रभु। जहाँ मैं जाऊँ वहाँ अपने साथ पाऊँ तुझे। वादा किया है तूने, कभी न छोड़ेगा मुझे। जहाँ मैं जाऊँ वहाँ अपने साथ पाऊँ तुझे। वादा किया है तूने मुझे, कभी ना छोड़ेगा मुझे। तू साथ में रहेगा सदा, तेरे जैसा कोई नहीं। तू साथ मेरे रहेगा सदा, तेरे जैसा कोई नहीं। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सबसे हसीन है तू हमदम मेरा प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सबसे हसीन है तू हमदम मेरा प्रभु। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, mighty God. Hallelujah. Hallelujah. हाथ उस धन्यवाद कीजिए। किया है ये तूने, कभी ना छोड़ेगा मुझे। जहाँ मैं जाऊँ वहाँ अपने साथ पाऊँ तुझे। वादा किया
हसीन है तू हमदम मेरा प्रभु हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करो सबसे हसीन है तू हमदम मेरा प्रभु Thank you Jesus, Lord, we bless your name. हर घर में पवित्र आत्मा की उपस्थिति हालेलुया धन्यवाद 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 यीशु हालेलुया 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 yes Lord Spirit of the song is on come and make your presence known reveal the glory of the risen Lord. Spirit of the sovereign Lord, come and make presence known, reveal the glory of the risen Lord. Let the weight of your glory come. Let the life of your river flow. Glory, Lord. Let the rain of your spirit rain. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory come.
The glory will fall. Hallelujah. Hallelujah. When it will fall, when we are holy, when our thoughts, our lives, our attitudes are holy, it will fall on us. 2 more minutes, lift up your hands and worship the Lord. Thank you, Jesus. So, thank you, Lord. Thank you, Lord. मेरी हर सोच पवित्र कर, make it holy, Lord. मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरे नज़र पवित्र कर, मेरी ज़ुबान को पवित्र कर, ऐ पाक जो भी चर्च में देख रहे हैं, जो भी अपने घरों में देख रहे हैं, अपने बच्चों के साथ हाथों में गाइए, हालेलुया। मुझे छो, मुझे छो, ऐ पाक मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा मकसद हो भला करना, मेरा मकसद हो प्रेम करना, ऐ पाक ऐ पाक पाक ऐ पाक ऐ पाक मुझे छो, मुझे छो, ऐ पाक ऐ पाक। अभी सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति यदि इस दुनिया में कोई है, वो है पाक रूह है। यीशु मसीह पिता के दाहिने तरफ है, यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर है परमेश्वर का, वो है पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। उसको बोलिए मुझे छूने के लिए, उसको बोलिए हमें छू ले, हमारे परिवार को छू ले, हमारे जीवन को छू ले, हमें प्रोटेक्शन दे, हमें
यीशु मेरे परिवार को मुझे तुझे नया कर लो। थैंक यू लॉर्ड, ये ग्रेस को तेरा अनुग्रह रहमत को से ग्रेस तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। हजारों लाखों लोग मर रहा है, आज मैं जिंदा हूँ केवल तेरे रहमत से लॉर्ड। एक मेरा धार्मिकता मेरा प्रार्थना का जीवन नहीं लॉर्ड, तेरा अनुग्रह तेरी रहमत से मैं चलता हूँ, तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, तेरी रहमत से मैं चलता हूँ, तेरी रहमत से मैं गाता हूँ, तेरी रहमत से मैं जीता हूँ। मैं पागल छोटी सी आराधना तुझे देते हैं परमेश्वर, इसे अर्पण कर यीशु के नाम से। सब बोलेंगे आमीन। आइए अपनी जगह पर बैठ जाएंगे और ऑफरिंग लिया जाएगा। खुदावंद परमेश्वर के मालिक राजों के राजा प्रभु की प्रभु आज सुबह में परमेश्वर आपकी उपस्थिति में खुदावंद परमेश्वर आपके भंडार में खुदावंद हर वो हाथ जिन्होंने खोला है परमेश्वर और बोया है खुदावंद अब्बा, तेरा वचन कहता है मलाकी 3:10 में परमेश्वर तू पलट कर देख
और मेरे भंडार पर अपने भेंटों को ला और मैं स्वर्ग के झलकों को खोलकर तुझे आशीषित करूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि तेरे वचन के आधार पर खुदावन हर वो मुट्ठी जिन्होंने खोली है खुदावन उन्हें आशीषित कर खुदावन परमेश्वर। खुदावन जिस तरह से उन्होंने बोया है परमेश्वर उसी रीति से परमेश्वर के जीवन में काटने का समय है खुदावन पर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो वचन का समय है परमेश्वर खुदावन हर एक शब्द खुदावन हर एक लफ्ज खुदावन परमेश्वर आपके अभिषेक के द्वारा आए खुदावन प्रभु जो भी आप चाहते परमेश्वर आपके लोगों के सम्मुख रखने के लिए खुदावन परमेश्वर अपने वचन के साथ हमसे बात कीजिए खुदावन परमेश्वर। हर एक महिमा हर एक चलाल खुदावन सिर्फ और सिर्फ आपको पहुंचे। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब सभी को जय मसीह की। कलीसिया में जो मुझे देख रहे हैं और जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन में देख रहे हैं, मैं रणसुरी विश्वास असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च आसनसोल की तरफ से अब सभी को स्वागत करते हैं आज सुबह के आराधना में। ये समय है हमारे पास प्रभु के वचन को सुनने के लिए और एक ऐसा समय जो संपूर्ण पृथ्वी एक हाहाकार के द्वारा जारी है। जहां भी देखते हैं जिधर भी हम सुनते हैं एक ही बात सुनाई दे रही है। लेकिन इसके बीच में हम जो मसीह हैं, हम जो यीशु के बेटे और बेटी हैं, हम जो कहते हैं कि हम यीशु के अनुयायी हैं, हमारे लिए किस तरह का प्रत्युत्तर होना चाहिए जब परिस्थिति सामने इस तरह से उठ खड़ी हुई है। इस समय में किस रीति से हमें आगे बढ़ना है, किस रीति से हमको चलना है, हमारा देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए। आज जो विषय मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं वो यही बात को प्रकट करता है कि किस रीति से हमारा प्रत्युत्तर होना चाहिए। आप जब प्रत्युत्तर देते हैं वो उस चीज पर आधारित होती है जिस विषय को आप जानते हैं। अगर आप किसी विषय को जानते हैं और किसी विषय के ऊपर आपकी जानकारी अच्छी है तभी आप उसके विषय में प्रत्युत्तर दे सकते हैं। आपके जीवन में आप तभी ढाढ़स बांध सकते हैं जब आपने खुद उस चीज को अपने जीवन में अनुभव किया है। तो जो आज आपके स्क्रीन में दिखाई देगा, जो मेरा टॉपिक है आज, क्रिश्चियंस हैव मेनी एडवांटेजेस। मसीहियों के पास कई सारे फायदे हैं और ये फायदे, ये एडवांटेजेस एक मसीह को तभी पता चलती है जब वो सचमुच परमेश्वर के घराने में जन्म लेता है। हालेलुया। एक बेटा और बेटी को ही पता होता है कि उसके मां बाप से उसे क्या फायदा पहुंच सकता है, उसे क्या अधिकार प्राप्त हुई है। अगर वो नहीं जानता कि वो उस परिवार का एक अटूट संग है, तब तक उसे पता नहीं है कि परमेश्वर के राज्य में या उस परिवार में उसे क्या फायदा पहुंच सकता है। तो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमारे सामने में ये सभी बातों को रखना चाहता है कि आज इस विपरीत परिस्थिति में हम किस रीति से अपने आप को रख सकते हैं, हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला जो विषय मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं, जो यीशु मसीह के बेटे और बेटी हैं, जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जो उनके पीछे चलते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं, द एडवांटेज ऑफ हैविंग ऑल थिंग्स न्यू। द एडवांटेज ऑफ हैविंग ऑल थिंग्स न्यू, सभी चीजों का नया हो जाने का फायदा। हर वो जन जो यीशु में पाया जाता है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है। मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको, मैं वचन के साथ रखना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 17 पद, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 17 पद। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देख वे
नए हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है हर वो व्यक्ति जो मसीह में पाया जाता है वो नई सृष्टि है। लेकिन अगर आप वचन को ध्यान से देखेंगे उसकी शुरुआत में ही एक प्रश्न चिन्ह है, सो यदि अगर सो यदि का अर्थ है अगर आप यीशु मसीह में पाए जाते हैं, अगर आप यीशु में हैं तब आप नई सृष्टि हैं। वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है उसका मुकाबला हम अपने सामर्थ के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपनी ज्ञान के द्वारा नहीं कर सकते हैं। अगर आप संपूर्ण इस पृथ्वी के सारे भविष्यवक्ताओं को, जो प्रमुख भविष्यवक्ताएं हैं, जो परमेश्वर के दास से जो कह रहे हैं कि परमेश्वर आज इस कोविड की परिस्थिति को क्यों नहीं उठा रहे हैं, अगर उनके बातों को अगर ध्यान से देखेंगे और परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे तो आपके सामने में एक बात क्लियर होकर आती है कि ये वो समय है जब परमेश्वर अपने विश्वव्यापी कलीसिया को तैयार कर रहा है। वो अपने कलीसिया को तैयार कर रहा है क्योंकि वो जल्द आने वाला है। हर वो जन जो कहता है कि वो मसीह है वो उठाया नहीं जाएगा। हर वो कलीसिया जहां आराधना होती है, जहां पे लोग आते हैं, वो कलीसिया परमेश्वर के संग नहीं उठने वाला है। याद रखिए, कोई भी डिनोमिनेशन के आधार पर, कोई भी शिक्षा के आधार पर परमेश्वर का संगति को प्राप्त नहीं कर सकता। उसका सिर्फ एक ही कारण है, परमेश्वर कहता है जो मुझ में पाया जाता है। अगर आप यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय में जाएंगे, वहां में लिखा गया है कि दाखलता के साथ जो डाली जुड़ी हुई है, दाखलता का जीवन उसमें प्रभावित होता है। हालेलुया। ये जो मृत्यु, ये जो कोविड है, ये उन्हें संस्पर्श करेगा जिनके अंदर में दाखलता का प्रभाव नहीं है। आज ये समय है जब परमेश्वर शेक कर रहा है, हिला रहा है और वो तैयार कर रहा है अपने उस भव्य कलीसिया को जो उसने इफिसियों 5 अध्याय में जिसके संबंध में कहा, ऐसी कलीसिया जिसकी में ना कोई झूरी होगी ना कोई कलंक होगा। हालेलुया। तो अगर आप प्रभु यीशु में है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। तो हमको परमेश्वर आज कहता है, अगर तू विश्वास रखता है, अगर तू जानता है कि तू मुझ में बना है, तो याद रख तू नई सृष्टि है। हर वो बातें जो मुझे छुई है, जो बीती बातें हैं, जो मुझे संस्पर्श किया है, वो सब बीत जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के सुबह अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करते हैं तो प्रभु कहता है कि आप नई सृष्टि है। हो सकता है उस चीज का नाम कोविड-19 हो सकता है कोई परिस्थिति का नाम हो, या कोई संस्पर्श का नाम हो, या किसी विरोध का नाम हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आज तू नई सृष्टि है यदि तू मुझ में पाया जाता है। पुरानी बातें बीत गई है, देख वे सब नए हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और एक वचन को आपके सामने में रखना चाहता हूं, यशाया उसका 43 उसका 18 और 19। आइज़ाया 43 वर्स 18 एंड 19। परमेश्वर का वचन कहता है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण कर लो। बीती हुई घटनाओं को स्मरण करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। उसके बाद 19 के पद में परमेश्वर कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वे अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है वो क्या करने वाला है? वो जंगल में मार्ग बनाने वाली है, वो निर्जल देश में नदियां बहाने वाली है। लेकिन कब? जब हम पुराने चीजों को भूल गए हैं, जब हम मसीह में पाए जाते हैं, जब हम परमेश्वर में हैं। मैं फिर से कहता हूं, वो परिस्थिति का नाम क्या भी हो, उस जंगल का नाम क्या भी हो, उस नदियों का नाम क्या भी हो, परमेश्वर
बीच से मार्ग को बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह में परमेश्वर आपको कहता है कि कोविड अगर वो जंगल है तो परमेश्वर योग्य है उसके बीच में मार्ग को बनाने में। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह में बने हुए हैं, प्रॉब्लम है कि आज हम यीशु को छोड़कर बहुत सी चीजों को देखना शुरू कर दिए हैं। आज हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। अगर आज हम कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं, तो एक विश्वासी होकर आज हमारा नजरिया क्या है? क्या आज मैंने परमेश्वर यीशु मसीह को पहला स्थान दिया या दूसरे चीजों के ऊपर ध्यान रख रहा हूं? कहां है मेरे विश्वास? मैं इसका अर्थ ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेडिसिन के ऊपर, आप हॉस्पिटल्स के ऊपर, आप इन चीजों के ऊपर ध्यान ना दें। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं वो बात कर रहा हूं कि विश्वासी होने के नाते इस विपरीत परिस्थिति में आपका प्रत्युत्तर क्या है? आपका आज का करा, आज अगर सुबह में आपका प्रत्युत्तर है, प्रभु मेरी एक ही चाहत है परमेश्वर, मैं तुझ में बना रहूं परमेश्वर, तो प्रभु कहता है अगर तेरी चाहत ये है तो तू नहीं सोचती है, पुरानी बातें बीत चुकी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दूसरी बिंदु को मैं रखना चाहता हूं और वो है दूसरा फायदा जो एक मसीह होने का, वो ये है द एडवांटेज ऑफ हैविंग होप। द एडवांटेज ऑफ हैविंग होप, आशा होने का फायदा। हर वो व्यक्ति जो यीशु में है, परमेश्वर ने उसके जीवन में आशा दी है। आज कई सारे चीज आपको सुनाई देती है, उसमें से प्रमुख है आत्महत्या। आत्महत्या, जवान आत्महत्या कर रहे हैं, मध्य वर्ष आत्महत्या कर रहे हैं, अपने जीवन को समाप्त कर दे रहे हैं। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं अगर किसी के जीवन में आशा नहीं है, इफ ही डजंट हैव एनी होप, वो अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तू मेरी बेटी है, अगर तू मेरा बेटा है, तो तेरे जीवन में आशा है। कैसे करके मैं कह रहा हूं, हम लोग देखेंगे वचन से तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 2 पद, तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 2 पद, और वचन कहता है उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहला बात तो ये जान ले कि मेरा परमेश्वर सनातन का परमेश्वर है और वो झूठ नहीं बोलता। और वो कहता है उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बेटा और बेटी, हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु में है, परमेश्वर कहता है मैंने तेरे जीवन में अनंत जीवन की आशा को रखी है। हालेलुया। आज हमारी आशा कहां पर है? क्या आज हमारी आशा इस दुनिया की चीजों पर है जो मुझे दिखाई देती है? क्योंकि अगला वचन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस आशा के संबंध में परमेश्वर कहता है। आज प्रॉब्लम यह है कि हम मसीह हुए, हम प्रार्थना करते हैं, हम बोलते हैं कि वी आर स्पेंडिंग टाइम इन प्रेयर, लेकिन हम आशा रखते हैं कि हमें चीज दिखाई दे, उसके ऊपर हम होप रखते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है? रोमियो उसका 8 अध्याय 24 से लेकर 25वां वचन में प्रभु कहता है आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वो देखने में आए तो वो फिर आशा कहां की? क्योंकि जिस वस्तु कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? 25वां वचन कहता है परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी वाट भी जोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है अगर वो चीज जो मुझे दिखाई देती है, अगर उसके ऊपर मैं आशा रखता हूं तो वो फिर कैसी आशा है? लेकिन अगर मैं सचमुच यीशु में हूं, अगर मैंने परमेश्वर की आत्मिक परिवार में जन्म लिया है, तो प्रभु कहता है उन बातों के ऊपर आशा रखो जिसकी जो तुम्हें दिखाई नहीं देती है। और जब वो तुम उस चीज के ऊपर तुम जब आशा रखते हो तो सिर्फ आशा नहीं,
बल्कि उसकी वाट जोने के बारे में कहा गया है, धीरज के साथ। वेट, क्या बोल रहा है? इंतजार करो, लेकिन कैसे? इन पैशन, आपको धीरज के साथ उस चीज की वाट जोनी है। वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है, उस परिस्थिति में कई मसीह अपने आशा को खो रहे हैं। डोंट लूज योर होप। अगर आपकी आशा आप दुनिया की चीजों के ऊपर रखे हैं, तो आपकी आशा ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि ये समय आने वाला है। परमेश्वर का वचन ये भविष्यवाणी कर चुका है कि अंतिम समय में लोग वचन को खोजेंगे, लेकिन वचन को नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आशा उन चीजों के ऊपर रखिए जो चीज आप दिखाई नहीं देती है, और वो चीज क्या है? स्वर्गीय विषय के बारे में। प्रभु का वचन कहता है, तू स्वर्गीय विषय के बारे में सोच और सब कुछ तेरे जीवन में जोड़ दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ आपके जीवन में उस वक्त में क्या चाहत है, क्या चाहिए, क्या आपको किस मार्ग में जाना है, वो सब कुछ परमेश्वर उस समय के अनुसार आपको देगा, जब आप स्वर्गीय विषय के बारे में सोचते हैं। परमेश्वर, इस वक्त खुदावंद में प्रार्थना करता हूं, जो हजारों लाखों में संख्या में लोग मारे जा रहे हैं संपूर्ण पृथ्वी पर, परमेश्वर प्रभु उनके हाथ बंद करने से पहले प्रभु वो तुझे जान ले। परमेश्वर प्रभु मैं आज प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर खुदावंद लोगों के पास लेके जा, खुदावंद जो डेथ बेड में है परमेश्वर प्रभु, हम चाहते हैं कि वो आत्माएं परमेश्वर नरक की ओर ना जाए, प्रभु तेरी स्वर्ग में जा पाए। परमेश्वर उनके पास लेके जा, दे कुड एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट इन देयर डेथ बेड, फादर गॉड। प्रभु वो परिवार खुदावंद परमेश्वर जिन्होंने अपने बेटे को, अपने मां को, अपने बाप को खो दिया, परमेश्वर हमारे शब्द उन खाली जगह को भर नहीं सकती है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, तेरी उपस्थिति उस जगह को उतर आए। परमेश्वर आप जब उन चीजों के ऊपर वाट लगाते हैं, उन चीजों के ऊपर आशा लगते हैं, परमेश्वर कहता है तेरी आशा में वो स्वर्गीय विषय है, और तेरे जीवन में जो चाहते हैं, जो चीज जिसके लिए तू मांग नहीं रहा है, जिसके लिए वो समय बिता रहा है, ले नहीं रहा है, दूसरों के लिए समय बिता रहा है, वो सब तेरे बोलने से पहले तेरे जीवन में जोड़ दिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बीमार हैं, लेकिन दूसरों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं अपनी बीमारी से पहले। You will be healed first, then that person will be touched. Because you are spending time in the presence of the God, and you are asking for other, not for yourself. Praise God. परमेश्वर कहता है जीवित चीजों पर आशा रखो, नासमान चीजों पर नहीं। मेरी तीसरी बात मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं, जो फायदा हमारे जीवन में पहुंचता है, the advantage of having peace। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान युग में। आज जीवन में हर एक जगह पर लोगों के जीवन में अशांति है। लोग कई चीजों को आज कर रहे हैं, कई चीजों के लिए कई चीजों में पैसा खर्च कर रहे हैं कि उनके जीवन में शांति पहुंच जाए, उनको शांति प्राप्त हो जाए। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तू मुझ में बना है, अगर तू मेरा बेटा और बेटी है, तो तेरे जीवन में शांति का फायदा है। और वो कैसे? रोमियो उसका 5 अध्याय 1 पर, रोमियो उसका 5 अध्याय 1 पर, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। प्रेज़ गॉड। सिंपल सा आंसर, सिंपल सा आंसर आखिरी शब्दों में रखा गया, परमेश्वर के साथ मेल रखे। तो अगर विश्वास के साथ अगर आपको धर्मी ठहराया गया है, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखना बहुत बहुत जरूरी है। आपको पता है यशायाह भविष्यवक्ता में जब यीशु मसीह के संबंध में यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो वन ऑफ द प्रोफेसी वाज ही इज द प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार। कौन है? यीशु मसीह। अगर आप यीशु में हैं तो अशांति नहीं, शांति आपको आएगी। मैं इस जगह पर एक सिंपल सा चीज आपको सबको, हर एक मसीह को पता है पौलुस और सिलास के बारे में। और पौलुस और सिलास जब बंधुआई में है, और वो बंधुआई के समय में कालकोठरी में है। आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति कालकोठरी में है
और उसे पता नहीं है कि उसका छुटकारा कब होने वाला है। उसे ये भी लगना शुरू हो गया था उसका मौत करीब है, और उस समय में, उस मध्य रात्रि में वो आराधना करना शुरू करता है। हाउ कुड अ पर्सन डू दैट? एक व्यक्ति कैसे करके ये कर सकता है जब उसकी परिस्थिति विपरीत है? बिकॉज ऑफ द पीस ऑफ गॉड। परमेश्वर की शांति उसके जीवन में थी। आज हमारे चारों तरफ जो कारागार है, जो जेल है, जो बंदवाई है, उसका नाम कोविड-19 है। आज उस परिस्थिति में हमारा प्रत्युत्तर क्या है? पौलुस और सिलास के जैसा या पतरस के जैसा यीशु को 3 बार इनकार करना। इट्स अपॉन यू। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाहरी परिस्थिति आपके जीवन में तनाव को नहीं लेके आए, तो आपको दुनिया की शांति नहीं बल्कि परमेश्वर की शांति की जरूरत है। What is the difference between the peace of God and the peace of world? दोनों के भीतर में बहुत बड़ी अंतर है। जो दुनिया शांति देती है वो शारीरिक तौर से होती है, मानसिक तौर से होती है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के शांति के साथ उसका तुलना करेंगे, द पीस ऑफ गॉड वो इनर बीइंग के साथ आता है, इनर हार्ट में आता है, जो परमेश्वर हमारे अंदर में पिरो देता है, जिसका प्रभाव बाहरी परिस्थिति से कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह शांति दुनिया के ऊपर में जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि यह शांति जुड़ी हुई है परमेश्वर के साथ जो अनंत का है। इसीलिए वो शांति को कभी दुनिया की चीज स्पर्श नहीं कर पाती। आज बाहरी परिस्थिति कैसा भी हो, अगर आप यीशु के साथ जुड़े हुए, you will have the peace of God। मैं आपको दूसरा वचन देना चाहता हूं, फिलिपियो उसका 4 अध्याय 6 से लेकर 8 पर। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 to 8। और यहां पे कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात का चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारी प्रार्थना किस तरह की है? आज हमारा निवेदन किस तरह की है? परमेश्वर कहता है धन्यवाद के साथ होना चाहिए। 7वां वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति कब परमेश्वर की शांति? जब मेरी निवेदन, जब मेरी प्रार्थना, जब मेरी निवेदन और प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख पहुंचता है। Who will praise the Lord? Who will praise the Lord? एक परिस्थिति कोविड के समय में क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं या हाय हाय कर रहे हैं? प्रभु कहता है इस परिस्थिति में भी you will have the peace of God when, जब आप परमेश्वर के सम्मुख आराधना, निवेदन, प्रार्थना ये सब जब करते हैं, जब विनती करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? धन्यवाद, थैंक्सगिविंग। एक व्यक्ति तभी धन्यवाद कर सकता है when he has the peace of God। परमेश्वर कहता है तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, हमारे सोच में है, वो नहीं आ सकता। तुम्हारे हृदय और तुम्हारी विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। और यही पौलुस और सिलास के साथ हुआ था, यही पौलुस और सिलास के साथ हुआ था, क्योंकि उनको बाहरी परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही थी। उनके जीवन में परमेश्वर की यह शांति परिपूर्ण थी। और 8वां वचन कहता है, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मौहामी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर का मार्गदर्शन इस कोविड-19 के समय, फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं इस कोविड-19 का सामना कैसे करना है। परमेश्वर कहता है कि उन बातों के ऊपर ध्यान रखो जो सत्य की है, जो आदरणीय की है, जो उचित की है, जो पवित्र की है, जो सुहावनी की है, जो मनभावनी की है, जो सद्गुण की है, जो प्रशंसा की है, और जो ध्यान लगाने वाली की है। 8वां वचन को अगर आप ध्यान से इसका सिनॉप्सिस करेंगे, अगर इसका ध्यान से आप स्टडी करेंगे, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन का चरित्र है। एंड दिस इज वन ऑफ द, ये अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये है परमेश्वर का वचन का चरित्र। और ये चरित्र
अगर आपके अंदर में पाना है, अगर आप चाहते हैं that you need this character, आपको परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमारा जो सीनियर पास्टर है, हमारे जो धार्मिक पिता हैं, पास्टर ऑलिवर जॉर्ज, उनसे हमने हमेशा ये सीखी है, गिव टाइम टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताओ, उसके साथ समय बिताओ। गॉड इज गोइंग टू डायरेक्ट यू, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज एक बहुत ही ऐसा समय आ चुका है, क्योंकि ये भविष्यवाणी के साथ में है कि जितना समय करीब आएगा उतना लोग अपने कानों को उन बातों के ओर लगाएंगे जो उनको मनभावनी लगती है, जो उनको अच्छा लगता है, बल्कि उन बातों पर नहीं जो परमेश्वर के वचन को सिखाता है। अंतिम समय में वचन को खोजा जाएगा, लेकिन वचन नहीं पाया जाएगा। आज अगर लोगों से हम पूछते हैं क्या आप परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं? हाँ, हम यीशु से प्रेम रखते हैं। क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? हाँ, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। क्या आप वचन पढ़ते हैं? क्या बात क्या बोल रहे, समय नहीं मिलता है वचन पढ़ने। वचन पढ़ने से नींद आती है पास्टर जी। ये कैसे संभव है? अगर आप मसीह के बेटे और बेटी हैं, अगर आप बोलते हैं कि आप यीशु से प्रेम रखते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं, तो यीशु और कोई नहीं बल्कि वचन है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 1, 2, 3। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। 1 अध्याय 14 पद में कहता है वचन देहधारी बनता है। हालेलुया। तो अगर आप यीशु से प्रेम रखते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के वचन से प्रेम नहीं रखते हैं, ये कैसे हो सकता है? संभव नहीं। तो अगर आप इस वर्तमान परिस्थिति में उस शांति का लाभ उठाना चाहते हैं जो परमेश्वर देता है, जो बाहरी परिस्थिति के साथ में किसी भी रीति से दबाव में नहीं आता है, जो आपको लीड करता है, जैसा पौलुस और सिलास को लीड किया है, हर बंधनों को तोड़ दिया है और उन चीजों को भी तोड़ा जिसने उसे बांधा था, तो परमेश्वर कहता है आज भी वो करने में योग्य है, अगर आपकी शांति दुनिया के ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर बनी हुई है। प्रेज द गॉड। चौथा बिंदु मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु में हैं तो जो एडवांटेज आपको मिलती है, एडवांटेज ऑफ हैविंग फैमिली प्रिविलेजेस, द एडवांटेज ऑफ हैविंग फैमिली प्रिविलेजेस, पारिवारिक विशेष अधिकार होने का फायदा। विशेष अधिकार, विशेष अधिकार। आज मैं एक बहुत परमेश्वर के प्रमुख दास थे जो परमेश्वर में सो गए हैं, डॉक्टर डीजे सिनातन, और उनका एक प्रमुख प्रचारों में से एक प्रचार में उन्होंने ये कहा था कि अगर आप सचमुच मसीह हैं तो यू नीड टू बी अ पावरफुल चाइल्ड ऑफ गॉड। अगर आप मसीह हैं तो आपको सामर्थी होने की जरूरत है। और उन्होंने कहा था वो बेटा वो बेटी तब सामर्थी बनता है जब उसका वो पता है कि उसका बाप और उसका पिता का योग्यता क्या है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, अगर आपने यीशु के हाथों पर अपने जीवन को समर्पित किया है, आपने अगर नया जन्म को पाया है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका नया जन्म कौन से परिवार में हुआ है। उस त्रिएक परमेश्वर के परिवार में आपका जन्म हुआ है। हम लोग देखेंगे रोमियो उसका 8 अध्याय 16 और 17 वचन कहता है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16 to 17, आत्मा आप भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। और वो क्या गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। सबसे पहला आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि तू परमेश्वर का बेटा है। क्या जानता है कि तू परमेश्वर की बेटी है? क्योंकि आपकी आत्मा को अच्छे रीति से पता होता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके आत्मा को ये निर्धारित करता है कि तू जानता है कि तू परमेश्वर का संतान है। दूसरा, परमेश्वर का वचन कहता है 17वां आयत में कि और यदि संतान है तो वारिस भी। अगर तू संतान है तू वारिस भी है। वरन परमेश्वर का वारिस और मसीह का संग वारिस है।
जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। प्रेज गॉड। प्रभु कहता है अपने वचन में कि संतान तो है, लेकिन संतान के साथ साथ यह याद रख कि तू वारिस है। किस चीज का वारिस? अगर मेरा बाप सृष्टि का मालिक है, वो अगर सृजनहार है, अगर वो सृष्टि करता है, तो याद रखिए ये संपूर्ण जगत उसके द्वारा रची गई है। और अगर उसका बेटा आप है, तो वारिस का अर्थ है ये संपूर्ण सृष्टि के ऊपर आपका भी अधिकार है। प्रेज गॉड। यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको समझना है फैमिली प्रिविलेजेस को, उस विशेष अधिकार को समझना है जो प्रभु यीशु में आपको प्राप्त हुई है। और अगर 17 वचन के आखिरी में जाएंगे तो लिखा गया जबकि हम उसके साथ दुख भी उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। अगर उसके लिए दुख उठाना भी पड़ रहा है तो याद रखिएगा महिमा आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इस कोविड-19 के समय में, इस विपरीत परिस्थिति के समय में हमारा प्रत्युत्तर कैसा है? क्या आज हम अधिकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमारा शब्द, क्या हमारे जीवन की कार्य वो प्रकट करता है कि मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं उसका संग वारिस हूं? क्या ये प्रकट करता है? अगर आज आपके जीवन में वो विशेष अधिकार का आपने उपलब्ध किया है, अगर आप जानते हैं उसके संबंध में, तो आप जिस चीज को इस पृथ्वी पे बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। आप जिस चीज को खोलेंगे उसे स्वर्ग में भी खोला जाएगा। यह है विशेष अधिकार। अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं। मैं और एक वचन इसके लिए कहना चाहता हूं, पहला यूहन्ना 1 जॉन 5:14। और हमें उसके सामने जो यहां होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारा सुना जाएगा। वो हमारा सुनता है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप उसके परिवार में हैं और आपको पता है कि आप कौन हैं, तो जब आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो परमेश्वर का सुसमाचार का सभी वो अभिवचन खुल जाता है। खटखटा तो चलेगी, द्वार खोली जाएगी, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास कर और तेरे जीवन में हो जाएगा। ये सभी वचन उनके लिए है जो उसके संतान है, जो उसके वारिस के अधिकार है। पांचवा जो विषय में आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, द एडवांटेज ऑफ having contentment, the advantage of having contentment। और contentment जो होती है वो होता है संतोष, संतोष होने का फायदा। आज हम दुनिया जैसे बन गए हैं। पौलुस कहता है अपने पत्रियों में, आप दुनिया में हैं लेकिन दुनिया जैसा आप नहीं है। आप दुनिया जैसा आपको बनना नहीं चाहिए। दुनिया आपके द्वारा बदलनी चाहिए, आप दुनिया के द्वारा बदलना नहीं चाहिए। लेकिन संतोष एक ऐसा चीज है, वो संतोष मनुष्य चरित्र में कभी नहीं होती है। अगर आप शारीरिक रीति में जीते हैं तो आपके जीवन में कभी भी संतोष नहीं आ सकता है। आज अगर मैं साइकिल में हूं तो कल मुझे बाइक चाहिए, अगर मुझे कल बाइक में हूं तो मुझे कल 4 व्हीलर चाहिए, एक कार चाहिए, और अगर मैं कार में हूं तो मुझे और ब्रांडेड कार चाहिए। तो मैं इस चीज के ऊपर में ये बोलना चाहता हूं, मुझे गलत मत लीजिएगा। जीवन में लक्ष्य होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन संतुष्टि अगर लक्ष्य के ऊपर आधारित होती है तो आप अपने जीवन में कभी भी शांति नहीं पाएंगे। अगर आपका जीवन लक्ष्य है कि मुझे मर्सिडीज में बैठना है, देन यू विल नेवर हैव द पीस, और आपके जीवन में कभी भी संतोष भी नहीं रहेगा। लेकिन आपने लगाया है कि ये मेरा गोल है, लेकिन उस गोल के लिए आप दौड़ते नहीं है बल्कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं, यू विल
100% फाइंड दैट गोल। आपको 100% वो गोल प्राप्त हो जाएगी। कैसे मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों उसका 4 अध्याय 11 से लेकर 13 पर, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 11 to 13, और प्रभु का वचन कहता है ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करो। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, कंटेनमेंट उनके जीवन में आती है जो प्रभु में बने हैं, जो यीशु में पाए जाते हैं। उन्होंने ये सीख ली है, और वो सीख किससे प्राप्त होती है? वो पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्राप्त होती है कि आप संतोष रहें। आप किसी भी चीज पर, आपको अगर आज एक नमक और अगर उसके साथ रोटी भी मिले, उसके साथ चावल भी मिले, तो आप धन्यवाद के साथ वो करेंगे अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटी नहीं है, आप कुड़मुड़ाएंगे। प्रभु ये क्यों? उधर पे बिरयानी का महक आ रहा है, नाक में आ रहा है, मेरे सुगंध में आ रहा है, मुझे क्यों ऐसा कर रहा है कि मुझे नमक नहीं? ऐसा नहीं होगा। देखिए वचन क्या कहता है आगे, 12 पद में कहता है मैं दीन होना भी जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नम्रता उसके अंदर में आती है जो प्रभु में है। दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा। क्यों वो जानता है संतोष होना? क्यों वो नम्र होना जानता है? क्योंकि उसने सीखा है। ये सीख ये दुनिया नहीं देती है, ये सीख पवित्र आत्मा परमेश्वर देती है। ये सीख परमेश्वर देता है जब आप उसके परिवार में बने रहते हैं। 13 वचन कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज़ गॉड। उसकी कंटेनमेंट, उसका जो संतोष है वो परमेश्वर में, क्योंकि उसको पता है उसकी बल, उसकी ताकत उसके अंदर में नहीं बल्कि उसके परमेश्वर में निर्भर है। इस वर्तमान परिस्थिति में आज अगर आपका स्ट्रेंथ, अगर आज आपका सब कुछ परमेश्वर में निर्भर है, यू विल फाइंड द कंटेनमेंट। आपके अंदर में संतुष्टि आ जाएगी। आप किसी और चीजों के बारे में सोचेंगे नहीं, आप परमेश्वर में तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको सिखाएगा भूखा रहना, दीन होना, आपको नम्र होना भी सिखाएगा, आपको बढ़ना भी सिखाएगा। जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं, याद रखिएगा प्रभु कहता है मैंने तुझे पूछ के नहीं बल्कि सिर के अभिषेक को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इन अभिवचनों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये अभिवचन उनके अंदर में आती है जो परमेश्वर में बने हुए रहते हैं। उनको पता है अगर सामने में लाल सागर है और पीछे में अगर मिस्र की सेना है, लेकिन परमेश्वर आज भी योग्य है उस लाल सागर को 2 भागों में बांटने में और उसके बीच से माल को तैयार करके आपको उसके बीच से ले जाने के लिए। उस लाल सागर का नाम आज अगर कोविड-19 है तो परमेश्वर कहता है संतोष हो मुझ पर, मैं योग्य हूं उसके बीच में माल बना के लेके जाने में। हालेलुया। आज आपकी संतोष कहां पे है? आज आपका संतोष कहां पे है? क्या परमेश्वर पे आप संतोष करते हैं? अगर परमेश्वर पर संतोष करते हैं तो समय के अनुसार वो आपको दीन भी करवाएगा, वो आपको बढ़ाएगा भी। आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके ऊपर में और कोई नहीं बल्कि उस जीवित परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उस यहोवा परमेश्वर का हाथ रहता है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का अगला मैं जो पॉइंट है वो रखना चाहता हूं। जो अगला फायदा है, द एडवांटेज ऑफ हैविंग एश्योरेंस। द एडवांटेज ऑफ हैविंग एश्योरेंस, आश्वासन होने का फायदा। आपके जीवन में एक आश्वासन रहती है, जो आश्वासन परमेश्वर से प्राप्त होती है। रोमियो उसका 8 अध्याय 28 पद कहता है और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आपको बुलाया गया है, तो प्रभु कहता है कि हर बातें मिलकर तेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। आज आपको दिखाई दे रहा होगा आपके समूह में 10 दरवाजे और 10 दरवाजे बंद हैं। परमेश्वर आपको कहता है वो 10 दरवाजे इसलिए बंद हैं क्योंकि उस 10 दरवाजों के बीच से मैं तेरे लिए मार्ग को तैयार करने वाला हूं। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी चीजें मिलकर, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है 8 अध्याय 28 पद में, और जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब
हर एक बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। प्रेज गॉड। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, तो कोई भी ऐसी बातें नहीं है जिसका अंत नेगेटिव हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। परमेश्वर कहता है मेरे बुलाए मेरे बुलाए गए जनों के लिए हर बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। प्रेज गॉड। अगर प्रभु की इच्छा है तो आपके जीवन में परमेश्वर वो कार्य करेगा। रोमियो 8 अध्याय उसका 35 वचन कहता है, कौन मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हाँ जी, ये सभी बातें हमें दिखाई दे रही है। परसिक्यूशन आज हमें दिखाई दे रही है, आज कोविड दिखाई दे रहा है, अलग अलग परिस्थिति दिखाई दे रहा है। प्रभु कहता है क्या ये बातें तेरे जीवन में इस रीति से आ रही है कि वो तुझे मुझसे अलग कर रहा है, तेरे जीवन में जो मेरे प्रति प्रेम है उसे कम कर रहा है। 36 वचन कहता है, जैसे लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के नाम गिने गए हैं। 37 वचन कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। 38वां वचन कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान ना भविष्य, ना सामर्थ ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। प्रेज गॉड। अगर आज आपकी साक्षी 27, 28 और 39वां 37, 38 और 39वां वचन होगा, अगर आपके जीवन से यह साक्षी है कि ये सभी बातें आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करता है, तो प्रभु का आज का अधिवचन आपके लिए है कि आपके जीवन में परमेश्वर का यह आश्वासन है, कैसा भी परिस्थिति है, कैसा भी मार्ग में है जो आपको लग रहा है कि आपको समाप्त करने वाला है, प्रभु कहता है हर बातें मिलकर तेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा अगर तू परमेश्वर के प्रेम में बना हुआ है। प्रेज गॉड। अब जिस परिस्थिति में अगर आप परमेश्वर के प्रेम में बने हैं तो परमेश्वर आपको एश्योर कर रहा है, परमेश्वर आपको एश्योर कर रहा है कि तुझे कोई स्पर्श नहीं करेगा। याद रखिएगा, प्रभु का वचन कहता है मैं सिर्फ तुझे नहीं बल्कि तेरे आने वाली पीढ़ियों को भी आशीषित करूंगा। हमारे जेनरेशन आशीषित हो सकते हैं मेरे घूम जाने से, मेरे प्रभु के साथ मिल जाने से। अगर मैं परमेश्वर के साथ मिल गया, मेरे आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर आशीषित करने में कोई भी रोक नहीं सकता। प्रेज गॉड। ये एक चेन ऑफ ब्लेसिंग है जो आपको प्राप्त होती है। 7वां फायदा जो आपको पहुंचता है, द एडवांटेज ऑफ हैविंग मीनिंगफुल लाइफ, द एडवांटेज ऑफ हैविंग मीनिंगफुल लाइफ, सतर्क जीवन होने का फायदा, सार्थक जीवन होने का फायदा, मीनिंगफुल लाइफ। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 10 से लेकर 12 पद में कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम लोग चाहते हैं अच्छे दिन देखना। आज हमारी सबकी चाहत है प्रभु अच्छा दिन, वो दिन वापस आ जाए। मैंने कल एक पोस्ट किया था फेसबुक में, 3 साल पीछे का पोस्ट था कि हम सभी पास्टर्स मिलकर एक अच्छा समय को बिता रहे थे और मैंने लिखा था मिस दोस डेज। मैं वो दिन सचमुच मिस कर रहा हूं क्योंकि वो संगति मिस कर रहा हूं। और आज सबके जीवन में यही है। प्रभु कहता है क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखने का चाहत है, वो अपने जीव को बुराई से, प्रेज गॉड, अपने जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों को करने से रोक। हालेलुया। यह वर्तमान परिस्थिति में आपका अभिवचन क्या है, आपका प्रत्युत्तर क्या है? मैंने शुरुआत में कहा कि किस तरह से आप प्रत्युत्तर कर रहे हैं, आपके होठ किस तरह के बातों को प्रकट कर रहा है। क्या वो परमेश्वर को महिमा दे रहा है?
क्या वो परमेश्वर की सकारात्मक बातों को रख रहा है, ना कि नकारात्मक इस दुनिया के जैसे आपके मुंह से बात आ रही है। 11वां वचन कहता है वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। 12 वचन कहता है क्योंकि प्रभु का आंख धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनके विनती, याद रखिएगा, ध्यान से मेरा बात को वचन को सुनिएगा, उनकी कान उनकी विनती की ओर लगी रहती है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। प्रेज़ गॉड। अब कितना भी प्रार्थना कर रहे हैं, दैट प्रेयर नीड्स टू रीच गॉड ऑलमाइटी। और प्रभु कहता है मैं उनकी प्रार्थना को सुनता हूं, मैं उनकी प्रार्थना के ऊपर मैं ध्यान रखता हूं जिनके अंदर में बुराई नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वो दिन वापस आ जाए, वो अच्छे समय वापस आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि यू नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज क्राइस्ट। बहुत एक प्रमुख शब्द है, ऐसे बोले जाते हैं कि व्हाट यू प्रीच need to be seen from your life। जो आप प्रचार करते हैं वो आपके जीवन से दिखाई देना चाहिए। If I am preaching Jesus Christ, if I am preaching the kingdom of God, if I am preaching the love of God, that need to be projected from my life। मेरे जीवन से अगर मैं परमेश्वर के राज्य के संबंध में प्रचार कर रहा हूं, परमेश्वर के प्रेम के संबंध में प्रचार कर रहा हूं, अगर मैं यीशु के संबंध में प्रचार करता हूं, तो मेरे जीवन से वो चीज दिखाई देना चाहिए। और यही बात इस वचन में परमेश्वर कहता है कि आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आप जो चाहत रखते हैं कि वो दिन वापस आ जाए, वो परमेश्वर का समय वापस आ जाए, तो आपको परमेश्वर कहता है बुराई से दूर हट जा, बुराई से दूर हट जा। आपके होंठ, आपके जीव परमेश्वर के शब्दों को कहेंगे, परमेश्वर के वचनों को कहेंगे, दूसरों को श्राप नहीं, बुराई के साथ नहीं, बुराई की बात नहीं, बल्कि दूसरों को आशीष करेंगे, दूसरों को उठाएंगे, दूसरों को करीब लाएंगे, दूसरों को परमेश्वर में बढ़ाएंगे। ये है परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का कार्य। अगर आप ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर कहता है सार्थक है तेरे जीवन, क्योंकि मेरे में रहते हुए तेरा जीवन सार्थक है जब तू बुराई से अपने आप को दूर रखता है। प्रेज़ गॉड। आज इस वर्तमान समय में मैंने जैसा कहा कि ये बहुत ऐसे समय है जहां पर लोग मारे जा रहे हैं। अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं तो एक चीज कॉमन है अभी के समय में कि हर वो जगह, वो कब्रिस्तान हो या वो जलाने वाली जगह हो, क्रेमेशन की जगह हो, वहां पे जगह नहीं मिल रही है। आंसुओं से लोग लोटपोट हो रहे हैं, रोड में फेंका हुआ है डेड बॉडीज और वहां पे जलाए जा रहे हैं। कल मैं देख रहा था ऐसा जगह, वहां के लोग बोल रहे हैं आज तक अपने जीवन में हमने ऐसी देखी नहीं है कि 25 डेड बॉडी जल रहे हैं, 50 पड़े हुए हैं लाइन पर और आगे रोड में भी पड़े हुए हैं कि कब उनको मौका मिले जले। कल मैं और एक चीज को देख रहा था कि हॉस्पिटल में लोगों जो कोविड में पड़े हैं, जिनको श्वास की दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन नहीं देने की वजह से, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वो दम तोड़ रहे हैं। उनके लोग, उनके जो प्रेमी है, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके छाती पर प्रेस कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाए। तड़प तड़प के मर रहे। कई आत्माएं चले जा रही है। आप मसीह के बेटे होने के नाते, आप परमेश्वर के जन होने के नाते, व्हाट आर यू डूइंग? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? आज हमें देखने की जरूरत है। और मेरा जो अंतिम जो फायदे की बात मैं करूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, और ये है द एडवांटेज ऑफ हैविंग करेज। द एडवांटेज ऑफ हैविंग करेज, साहस होने का फायदा। और आपको साहस कहां से प्राप्त होती है? दूसरा तिमोथेयुस उसका 1 अध्याय 2 पद, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज तक आपने किसी मनुष्य की प्रतीति की है, अगर आप किसी मनुष्य को देख के चल रहे हैं, आपने कहा कहते हैं कि आप विश्वासी है लेकिन किसी मनुष्य के पीछे चल रहे हैं,
तो परमेश्वर के इस वचन का जो प्रतिफल है वो आपके जीवन में कभी भी नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर का प्रतीति करते हैं, इफ यू आर फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट, इफ यू आर फॉलोइंग द गॉड ऑफ द बाइबल, तो लिखा है अगर आप उसकी मैंने प्रतीति की है, जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वो मेरे घड़ी के उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। आपके कमजोरी के समय, आपके बलहीनता के समय कोई मनुष्य आपके साथ नहीं हो सकता, वो आपका बल नहीं हो सकता। याद रखिएगा, जो विवचन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा सरंस्तार हूं, मैं तेरा घर हूं, मैं तेरा कोने का सीने का पत्थर हूं, मैं तेरी चट्टान हूं, वो कोई मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर यहोवा का दावा है। वो परमेश्वर का विवचन है। और अगर इस विपरीत परिस्थिति में, इस कठोर परिस्थिति में अगर आप परमेश्वर की प्रतीति नहीं कर रहे तो आप गिर जाएंगे। आप गिर जाएंगे क्योंकि आपका बल नासमान चीजों के ऊपर है। लेकिन अगर आपका बल आपने सनातन परमेश्वर के ऊपर बनाया रखा है तो वो कभी भी टूट नहीं सकता है। फिलिपियों 1 अध्याय 20 और 21 पद कहता है, फिलिपियंस चैप्टर वर्स 1, 20 and 21, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बातों में लज्जित ना हूं, पर जैसा मेरा प्रबल साहस के कारण मसीह के बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। ये हमारी साक्षी होनी चाहिए। आज हर एक मसीह की साक्षी यही होनी चाहिए कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, लेकिन मेरी देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। मेरे जीवन के हर एक कार्य के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। अगर ये आपके जीवन में है तो प्रभु कहता है तेरे जीवन में मैंने वो साहस को डाल दिया है। आपने उस करेज का अनुभव कर लिया जो परमेश्वर से आपको प्राप्त होती है। और मैं धारस बांधकर ये कह सकता हूं कि पौलुस के जीवन में ये करेज निरंतर लगातार बनी हुई थी। इसीलिए जब तक गला काट कर फेंका नहीं गया तब तक बोलते गया, तब तक बोलते गया। प्रभु का वचन कहता है पीट कर कूट कर नगर के बाहर में फेंक दिया, मर गया, मर गया। एक में तो कुबड़ा था, छोटा था, नाटा था, देखने में भी अच्छा नहीं था, पीटा गया, कूटा गया, बाहर फेंक दिया, मर गया। हम रहते तो भाग जाते अगर थोड़ा सा भी जीवन बचा होता। उसको श्वास मिली, उठा, उसी नगर में आके प्रचार किया और परमेश्वर की कलीसिया का स्थापना कर दिया। ये जो करेज है ये कभी भी कोई भी मनुष्य की चीजों के ऊपर, इस पृथ्वी के विषय के ऊपर नहीं हो सकती है। ये परमेश्वर प्रदान करता है। और ये करेज हमने वो सभी पहली सदी की कलीसिया के ऊपर देखी है, उन चर्च फादरों के ऊपर देखी है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ज्योति के न्याय जलाते हुए रखा। परमेश्वर आज कहता है डू यू हैव दिस एडवांटेजेस। परमेश्वर आज आपसे कहता है क्या आपके पास ये फायदे हैं। प्रभु आज आपसे प्रश्न करता है आर यू इन क्राइस्ट। क्या आज हम यीशु में हैं। मैं आपके सामने में एक आखिरी वचन को रखते हुए मैं समाप्त करूंगा और ये प्रश्न को आज आपके जीवन में और हमें खुद पूछना है। गलातियों उसका 3 अध्याय 26 और 27 वचन, गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 26 एंड 27, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। 27 वचन कहता है अगर हम संतान हैं और तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। याद रखिएगा हमने यीशु मसीह को पहना है। ये बपतिस्मा उस पानी की बपतिस्मा के बारे में नहीं है, ये बपतिस्मा जो आत्मा के द्वारा आपको मिलती है, जिस बपतिस्मा के बारे में बताया गया है when you believe in Christ you are stamped by the Holy Spirit। आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा की छाप दी गई है। ये वो बपतिस्मा के बारे में कहा गया है। और अगर आपने उस बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह को पहन लिया है तो आपको एक चीज
ध्यान से याद रखना है। अगर आप फिलिपियों उसका 1 अध्याय आखिरी पदों में जाएंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि हमें उस पर विश्वास करने से ये अनुग्रह प्राप्त हुई है। और वो अनुग्रह क्या है? सिर्फ उस पर विश्वास करना नहीं, बल्कि उसके साथ दुख उठाने के लिए भी। प्रेज़ गॉड। अगर आपको ताड़ना पहुंच रही है, आपको कष्ट पहुंच रहा है, आपको क्लेश पहुंच रहा है, याद रखिएगा प्रभु यीशु मसीह को भी वो पहुंचा। और वो मार्ग से जब गुजरता है कोई, वो होता है छांटने का समय, और वो आज चल रहा है कलीसिया के ऊपर। और अगर वो छांटने का नाम अगर कोविड-19 है, टेक इट एज ए पॉजिटिवली। परमेश्वर की इस बात को सकारात्मक रीति से लीजिए। वो चीज आपको बर्बाद नहीं कर पाएगी अगर आप दाखलता में जुड़े हुए हैं और दाखलता का जीवन अगर आपके अंदर प्रभाव कर रहा है। इसीलिए जो प्रश्न था वो प्रश्न था, डू यू हैव दिस एडवांटेजेस, आर यू इन क्राइस्ट? ये आज का प्रश्न है। और ये प्रश्न से मैं आज आपके सामने में इस वचन को समाप्त करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन को, इस प्रश्न को जब आप जवाब देंगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बात करेगी और आपको दिखाएगी कि ये 8 फायदे जिसके संबंध में आज हमने देखा है, दिस 8 एडवांटेजेस आर देयर इन योर लाइफ और नॉट। अगर नहीं है तो कौन सा कारण है जिसके वजह से वो नहीं है? अगर वो आपको पता चलती है तो सिर्फ एक ही चीज करना है, वो है समर्पण। प्रभु कर हाथों पर समर्पित कीजिए। वो योग्य है हर बातों को आपके जीवन में पूरा करने के लिए। आइए मैं पास्टर माइकल से निवेदन करूंगा कि वो हमें परमेश्वर की आराधना में अगुवाई करे और अंतिम प्रार्थना में। अब जहां पर भी हैं, अगर घर पे हैं, अगर हम यहाँ पे हैं, अपने आप को सौंपिए परमेश्वर के हाथों। जो सवाल आपके सामने में आज परमेश्वर ने वचन के द्वारा रखा है, आपको कुछ याद हो ना हो, सिर्फ इस सवाल को अपने जीवन में दोहराइएगा कि क्या ये सभी फायदे मेरे जीवन में है, क्या मैं यीशु में बना हुआ। सिर्फ इतना याद रखिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आज आपको मार्गदर्शन करेगा, आज आपको दिखाएगा, आज आपको अगुवाई करेगा और वो परमेश्वर की उपस्थिति में आपको लेके जाए। Jesus, Lord, we bless your name. आइए उस वक्त परमेश्वर खड़े हो जाएंगे। अंतिम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी गॉड। तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तू कहे
बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए। परमेश्वर ने हमसे बात किया, हालेलुया, कहा कि हमें परिवार के we are privileged to have a family religious hours. Hallelujah. Thank you Jesus. तू मेरा बेटा, मैं तेरा बेटा। और ये गवाही गुरु पाक गुरु हमें दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई देख रहे ऑनलाइन में, इतने सारे परिवार, मेरे प्रिय में बताना चाहता हूँ आपको, हालेलुया, परमेश्वर हमें चिता रहा है, जगा रहा है, वो बुला रहा है उसकी उपस्थिति में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वायरस के समय में थैंक यू लॉर्ड, वो हमें बचाएगा, कल भी बचाया, आज भी बचाएगा, आने वाले दिनों में बचाएगा। थैंक यू जीसस। खबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। खबर के बीच में तू कहता है तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में
मुझ पर तेरा कैसे जमा ऐसा कोई सपना बना जो कर सकेगा मेरा सामना बीमारी में तेरा सर झुका ऐसा कोई सपना बना जो कर सकेगा मेरा सामना उठते हुए मारो Yes, Lord. चलता बढ़ती हुए पैरों पे कदमों की निशान तेरे कदमों की निशान तेरे कदमों की निशान धन्यवाद देते परमेश्वर तेरे दास के द्वारा खुदा आज तूने हम लोग के सबके साथ बात किया परमेश्वर हाँ खुदा तू चमत्कारकारी करने वाला खुदा तू चमत्कारी खुदा है तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर इस समय में परमेश्वर तू रास्ता को बना रहा है इस समय में परमेश्वर तू उत्तम चीजों को हम लोग के जीवन में खुदा तू कर रहा है परमेश्वर हम लोग अपने आंखों को तेरे ऊपर रखे तेरे वचन के ऊपर रखे परमेश्वर ये परिस्थिति के ऊपर हम लोग अपने आंखों को ना रखे बल्कि तेरे ऊपर से तेरे वचन के ऊपर अपने आंखों को रखे परमेश्वर परमेश्वर तेरा वचन कहता है तू शांति का राजा है खुदा इस अशांति के समय में जहाँ पे हर जगह में परमेश्वर मृत्यु का खबर आ रहा है परमेश्वर इस जगह में परमेश्वर तेरी उपस्थिति है परमेश्वर पवित्र आत्मा तू है तेरा अभिषेक है जो हम लोग के जीवन में शांति को लेकर आ रहा है तेरा वो अभिषेक है पर तेरी उपस्थिति जो हम लोग के जीवन में इस आशाहीन परिस्थिति में आशा को हम लोग के जीवन में दे रहा है खुदा हाँ खुदा तू चमत्कार करने वाला खुदा है तू चमत्कार कर रहा है परमेश्वर और परमेश्वर सबसे बड़ा जो बड़ा गिफ्ट परमेश्वर तूने हम लोग के जीवन में दिया हुआ अनंत जीवन खुदा इस दुनिया में महामारी है परमेश्वर इस दुनिया में तकलीफ है खुदा इस दुनिया में परमेश्वर अलग अलग चीजों को हम लोग का सामना हम लोग करते परमेश्वर पर एक दिन वो जीवन आएगा खुदा इस जीवन में परफेक्ट पीस रहेगा परमेश्वर ये सिचुएशन याद करता है परमेश्वर कि ये दुनिया के लिए हम लोग नहीं जी रहे परमेश्वर आने वाली दुनिया के लिए परमेश्वर हम जी रहे और इस दुनिया में जब हम लोग जी रहे एक मिशन के साथ हम लोग इस दुनिया में जी रहे खुदा प्रार्थना करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो विश्वासी है परमेश्वर जो आज परमेश्वर दुनिया में नहीं रहे इस समय में अपने जीवन को परमेश्वर छोड़ दिए खुदा पर परमेश्वर लोग जानते हैं कि उसके जीवन में परमेश्वर को इटर्नल लाइफ को रखा है परमेश्वर कोई भी महामारी जो अनंत जीवन को परमेश्वर नहीं छीन सकता खुदा परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर के हम लोग के जीवन में परमेश्वर तेरे प्यार से हम लोग को भरा खुदा और परमेश्वर प्रार्थना करते इस शांति के समय में परमेश्वर चर्च को परमेश्वर तेरे विश्वासों को खड़ा कर परमेश्वर ताकि परमेश्वर अपने तेरे प्रेम को फैला पाए परमेश्वर तेरे शांति तेरे आशा को फैला पाए खुदा परमेश्वर हम लोग के जीवन को वो अभिषेक दे जो परमेश्वर आज तेरे दास ने कहा है परमेश्वर तेरे वचन कहता है परमेश्वर कि हम लोग कंटेनमेंट के साथ इस जीवन में जी पाए परमेश्वर कंटेनमेंट के साथ हम लोग चल पाए परमेश्वर इस दुनिया में परमेश्वर हम आए हैं एक मिशन को पूरा करने के लिए विश्वस्तता के साथ इस जीवन में जी सके परमेश्वर ताकि जब अनंत जीवन में प्रवेश करे परमेश्वर तेरा आवाज को हम लोग सुन पाए ये मेरे विश्वस्त बेटा बेटी तूने अच्छा कार्य किया तूने जो मेरे मिशन दिया तो उस मिशन को तुमने विश्वस्तता के साथ पूरा किया परमेश्वर के जीवन में साहस दे ताकि साहस के साथ इस सिचुएशन परिस्थिति में हम लोग लड़ पाए परमेश्वर तेरे वचन को सीने में लगा के परमेश्वर आगे बढ़ पाए परमेश्वर और लोगों को भी तेरे वचन का साहस को दे पाए परमेश्वर
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जितने सारे लोग व्यूअर्स परमेश्वर जो ऑनलाइन सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में परमेश्वर तेरा शांति आ पाए परमेश्वर, हर एक के जीवन में परमेश्वर तेरे प्रेम से तू भर पाए परमेश्वर, तेरे स्वर्गीय आशा से तू भर पाए परमेश्वर। और अगर कोई भी परमेश्वर कोरोना से परमेश्वर लड़ रहे परमेश्वर, तेरा चमत्कार हाथ से परमेश्वर छूने को दा और परमेश्वर चंगे को दा, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर बोले तेरे जीव महिमा के लिए साक्षी को दे पाए। प्रार्थना के अनुसार सभी को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। God bless you. Thank you so much for joining with us. परमेश्वर आप सबके साथ बने रहे। कल इलेक्शंस है, आप सब घर में प्रार्थना करते रहिएगा कि परमेश्वर इलेक्शंस में हमें विक्ट्री देने पाए। और हम चाहते हैं कि जो कलीसिया के साथ है वही गवर्नमेंट आने पाए। परमेश्वर आप सबके साथ बने रहे। प्रभु यीशु के नाम से इलेक्शंस के समय में प्रभु जी आपकी गवर्नमेंट आने पाए। हम लोग यशाया 6:9 को हम खोलते हैं, जहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट शैल बी on Jesus' shoulders. Government shall be the shoulder of Jesus, and shoulder is church. प्रभु कलीसिया के कंधे पे उठने पाए। जो लोग प्रार्थना किए हैं परमेश्वर एक मिरेकल को देखने पाए। फादर और हर एक चीज को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और तेरा राज्य आके तेरी इच्छा पूरी हो पाए यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। YouTube में दिया गया, अगर Facebook में नहीं आएगा तो YouTube में आएगा। आप उन दोनों लिंक को चेक करते रहिएगा, आप अपडेट्स में रहिएगा। और Facebook में आप AOG Assemblies of God Church आसनसोल को आप कनेक्ट कीजिएगा और शेयर जितना हो सके कीजिएगा। जो फैमिलीज देख नहीं पा रहे उन लोग को भी अलर्ट कीजिएगा, उन लोग भी मैसेजेस भेजिएगा WhatsApp में, ताकि वो भी देखें, क्योंकि इस समय में वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।